तुम लोग वहाँ कैमरा को सुरक्षित नहीं रख रहे हो। मैं कैमरा कल चुरा के लाया, किसी को पता ही नहीं चला। क्लास लेने के बाद ना तो टीचर ध्यान दे रहा है, और कॉरिडोर ऐसा है फर्स्ट ईयर का कि कोई भी आते जाता है, कोई भी जानने वाला व्यक्ति उसको निकाल के ले जा सकता है। 3,000 का नुकसान हो जाएगा। तो मैं शेखर को बताया था कि देख कैमरा चुरा के ले जा रहा हूँ। हाँ। कुछ खुलवा दीजिए ना। Okay, so let us start. Let us continue the series here. Good morning, sir. So we are trying to prepare laser in the laboratory level, academic level, and we have mechanism of laser. हम लोगों ने 3 प्रकार का ट्रांजिशन पढ़ा। ट्रांजिशन के बाद फिर हम उस जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को प्रैक्टिकल लेजर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया था। उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन थे। पहला, एक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए, और सेकंड पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। सो एनर्जी वैल्यू ज़्यादा देने के लिए हमारे पास फिर हमने डिफरेंट पंपिंग टेक्निक्स यूज किए डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर के अलग, गैसेस के अलग, और सेमीकंडक्टिंग लेजर के अलग। और पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी हमें, थोड़ा और फिजिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ गई। बट by using 2 level systems we cannot get laser, because 2 level system पे हमें population इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन नहीं होता, मिलता नहीं है। इसके लिए फिर हम लोगों ने 3 level system और 4 level system एक्सप्लेन किए। So in the 4 level system we have 4 energy levels, in 3 level system we have 3 energy levels. So this is, we are starting from this ground state E1, where we have N1 population. The population is N1, total number of atoms, and this is E4, the 4 level system is 3 level system. E3 at the top of this energy levels, and in 4 level system we are using 2 matrix table levels showing by these dotted lines. So this is E2 and this is E3. So when we give energy by using a pumping process, so through absorption transition, this is that energy given. So through absorption transition, out of N1 population, N2 populations are excited up to higher energy level. So here it's a lifetime, that is only 10⁻⁸ seconds, and we cannot avoid this probability of spontaneous transition. So there is certain probability of spontaneous transition, and the maximum atoms are accumulated here in this matrix table level through a non-radiative transition. Since energy difference between these levels decreases, so by using that Heisenberg's uncertainty relation, the retention time, the lifetime, it's increased. So here this lifetime is only 10⁻⁸ second, which enhanced up to 10⁻⁴ to 10⁻³ seconds. And the population inversion condition, it is now maintained in between these 2 levels in this case. So this is in between E3 and E2. When we give one external photon, stimulated transition starts. And through this stimulated transition, which is actually a chain reaction, so this chain reaction, we get the final form of image. So by a slow and spontaneous process, the atoms of this E2, this matrix table level, come back to ground state. So this was the 4 level system, and the 2 levels in between we are getting laser. That these levels are known as lasing levels. So in this matrix table level, this is known as upper lasing level. So upper lasing level. So this is
लोअर लेजिंग लेवल। सो इसके प्रॉपर्टीज में हमने फिर 2 लाइन और जोड़ दिया था। इट्स इफिशियंसी इज मोर देन, बहुत ज्यादा इसकी इफिशियंसी होता है ऐसा नहीं है। ये 4 लेवल सिस्टम है, गैसेस में जनरली यूज किया जाता है। इसकी इफिशियंसी 3 लेवल सिस्टम से ज्यादा होती है। 3 लेवल सिस्टम तो बहुत कम होती है। और इसमें आपको कंटिन्यूस लेजर मिलता है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन है वो हमेशा मेंटेन रहता है, क्योंकि टेम्परेरी है जो यहाँ पे एटम्स, जो अगर एक एटम भी यहाँ पहुंच जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन इज मेंटेन। सो द पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन इज मेंटेन इन बिटवीन ईच वन ऑफ इट। दिस इज द गैसियस सिस्टम। सो इन गैसियस सिस्टम ईच एंड एवरी एनर्जी लेवल्स आर मेटास्टेबल, क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, इसलिए सारे एनर्जी लेवल्स जो है मेटास्टेबल एनर्जी लेवल्स हैं। तो कोई भी 2 लेवल जिनके बीच में पॉपुलेशन कंडीशन मेंटेन होता है, और चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ये स्विचिंग अगर फोटॉन उसको मिल जाए तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है और उसको लेजर मिलता है। तो इस तरह से 3 लेवल सिस्टम 4 लेवल सिस्टम के जरिए से वी कैन गेट लेजर। बट द क्वेश्चन वाज, सारे मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, सारे कंडीशंस हम लोगों ने फुलफिल कर लिया, लेकिन एक चीज है वो ये है कि ये जो स्विचिंग फोटॉन है, ये स्विचिंग फोटॉन को हम कहां से देंगे, जो कि पॉपुलेशन जो ये स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को स्टार्ट करता है। लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कशन में शुरू किया था। एंड वी हैव सम फोटॉन्स इमिटिंग थ्रू दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसको हमने कह के रखा हुआ है कि दिस फोटॉन्स आर यूजलेस बिकॉज़ दिस फोटॉन्स डोंट हैव एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह इसमें नहीं है, तो इस फोटॉन्स को हम यूज करना चाहते हैं। तो ये फोटॉन्स चूंकि रैंडम फोटॉन्स हैं, इसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, उसको हमें सबसे पहले कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर एज इट इज यूज करेंगे तो कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस किसी भी डायरेक्शन पे जाएगा और आपको डिफरेंट डायरेक्शन पे चेन रिएक्शन मिलेंगे। फिर जो भी लेजर मिलेगा, दैट लेजर विल बी नॉट यूनिडायरेक्शनल, बट दैट विल बी दैट मल्टी डायरेक्शनल लाइट सिस्टम, दैट विल बी नॉट लेजर। So, in order to control these photons before starting this lasing action, we use one system, one device that is known as Fabry-Perot resonator. This is the Fabry-Perot resonator. So Fabry-Perot resonator, this is the system in which actually this lasing action is performed. ये सारा जो lasing action होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। Means now complete building block of laser, it is now ready. So in the complete building block, each and every components, that is that active centers, active medium, and that pumping techniques, everything, it is calibrated. It is just one can say fabricated in this Fabry-Perot resonator. Yes. So let us discuss about the structure. Here I am just drawing one schematic diagram. So as far as the structure is concerned, this is one glass container. So this is a glass container, a transparent glass container, obviously transparent. So this is a glass container. And this glass container is filled with active centers and active medium, means lasing materials. जिस material से laser बनना है वो material इसमें भर दिया जाता है. So this is filled with this is active center plus active medium. इसका पूरा जिस मटेरियल से लेजर बनना है वो मटेरियल इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो एक ग्लास कंटेनर है जिसके बीच में जिसमें एक्टिव सेंटर और एक्टिव मीडियम दोनों मटेरियल डाल दिया जाता है लेजर में। एंड दिस कंटेनर इज सैंडविच बिटवीन टू मिरर्स। दिस इज द फ्रंट मिरर एंड दिस इज द एंड मिरर। Two mirrors, and this is 20% polished mirror and this one is actually the 100% polished mirror. 100% polished.
structure is complete. So the structure of fabricated refrigerator is very simple. It's just a glass container containing active centers and active medium, दोनों इसमें भरा होता है. सामने एक 20% पॉलिश मिरर बना देते हैं और लास्ट में जो है वो एक 100% पॉलिश मिरर हम लगा देते हैं. स्ट्रक्चर इज कंप्लीट. जल्दी ड्रा करिए, देन वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म. कंप्लीट हो जाए जल्दी बताना भाई, है ना. हो गया? इज इट कंप्लीटेड? बाकी लोग भी बना लिए? सेजल, ईशा जैन, गौरव. हो गया सर. यस सर. यस सर. निशांत, तुम्हारा बन गया? निशांत गुप्ता. यस सर, बन गया. Okay, so let's proceed. So this is the structure of fabricated resonator, a glass container containing active medium and active center, and sandwiched between two parallel mirrors. And the properties of these mirrors are: the front mirror is 20% polished and the end mirror is 100% polished. Simple one. Now the complete lasing action, जो भी लेजर का जो इसमें होना है वो इसी सिस्टम के अंतर्गत होना है. एंड मैंने दोनों डायग्राम को साथ में रखा हुआ है ताकि हम एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ साथ कर सके. और ऐसे हमारे बुक में ये 6 to 7 डायग्राम से इसको समझाया गया है. सो लेट अस ट्राई टू ड्रा ऑल दोस डायग्राम वन बाय वन. सो फर्स्ट तुमको डायग्राम ड्रा करते जाना है. मैं एक सिंगल डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा. तुमको उसको रिपीटेडली हर बार एक नया डायग्राम उसके लिए डिजाइन करना है. पहले मैं उसको नंबर से बताता हूँ, उसके बाद फिर उसको देखते हैं उसको डायग्राम से तुम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हो. So what is the main objective of this fabricated resonator is to use this spontaneous photons emitted through spontaneous transition. हमने यही कहा कि spontaneous प्रोसेस से निकलने वाले photons रैंडम है. उसके रैंडमनेस को खत्म करना है, उसको एक रेगुलराइज्ड डायरेक्शन देना है, डायरेक्शनल इफेक्ट देना है. उसके लिए हम इसका यूज करते हैं और साथ ही साथ पूरा लेजिंग एक्शन हम इसके अंदर जो है परफॉर्म करेंगे. So हमने ये लेजिंग एक्टिव सेंटर एक्टिविटी में डाल दिया. अब हम यहाँ पर पंपिंग सिस्टम से इसको एनर्जी देते हैं. So by using that pumping technique we are getting energy. जैसे हमने इसको पंपिंग टेक्निक से एनर्जी दिया, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया. प्रोसेस में क्या क्या कि ग्राउंड स्टेट के जो एक्टिव सेंटर्स हैं, ये ग्राउंड स्टेट के एटम्स हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गए. हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच करके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी शुरू हो गया. और साथ ही साथ इधर मैक्सिमम एटम्स जो है वो इस मेटास्टेबल लेवल पर एक्युमुलेट भी हो गया. पॉपुलेशन एडिशन कंडीशन भी साथ साथ मेंटेन हो गया. तो जो भी प्रोसेस हम यहाँ पे 3 लेवल सिस्टम या 4 लेवल सिस्टम पे डिस्कस किए हैं वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया. हमने एनर्जी दिया, एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन हुआ, एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन से एटम्स हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से निकलने वाले जो फोटॉन्स है वो इमिट होने लगे और पॉपुलेशन एडिशन कंडीशन भी साथ साथ मेंटेन होने लगा. हमारा कंसंट्रेशन है ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से निकलने वाले फोटॉन्स. सो दिस इज द फिगर नंबर 1. फिगर नंबर 2 जिसमें हमको ये दिखाना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से निकलने वाले फोटॉन्स रैंडम डायरेक्शन पे मोशन पे है. सो इन फिगर नंबर 2 जस्ट यू हैव टू ड्रा डिफरेंट फोटॉन्स मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन इन द रैंडम डायरेक्शन. So all these photons, these are moving in the random direction. Okay,
सो लेट्स हैव जस्ट हम थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में बात करें। हमारे पास बहुत सारे फोटॉन्स हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन पे मूवमेंट पे है। अब इसको हम सारे डायरेक्शन पर इसकी इमिशन की प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिकल ले लें, तो भाई अपन जानते तो नहीं है कितने नंबर्स ऑफ फोटॉन्स है, लेकिन सारे डायरेक्शन पर इसकी इमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो आइडेंटिकल है। मींस फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 100 नंबर्स ऑफ फोटॉन्स and this is now x axis, this is y axis and z axis. If we have 100 numbers of photons emitting in different random direction, then equal probability है। तो let's say इस डायरेक्शन पे 33 photons चले जा रहे हैं, इस डायरेक्शन पे 33 photons, that will be in positive and negative direction, but the complete photons emitting through y axis and z axis is 33। अभी चूंकि ट्रांसपेरेंट है, 2-4 फोटॉन्स मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब होगा क्योंकि मटेरियल से होकर के जाना है। जस्ट रियल वर्ल्ड को इमेजिन करो, आपने ग्लास कंटेनर में मटेरियल भर के रखा हुआ है, वहां से फोटॉन डिफरेंट डायरेक्शन पे निकल रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन पे निकल रहा है मतलब उसको मटेरियल से होकर के जाना पड़ेगा। तो कुछ फोटॉन्स जो है वो उस मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा वाई और जेड एक्सिस का, और कुछ बाकी फोटॉन्स जो है चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है वहां से बाहर निकल जाएगा। हमारे पास जो एक्स एक्सिस में जो फोटॉन्स हैं 34 फोटॉन्स, ये 34 फोटॉन्स वाई और जेड एक्सिस वाले तो बाहर निकल गए, मतलब मैंने कहा एफिशिएंसी क्यों कम होती, देखो हमारे पास इतने सारे फोटॉन्स थे, वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से, उसमें हमने 66% फोटॉन्स को बाहर ही कर दिया, सिर्फ अभी भी इतना भी कम हो गया है, वो अब तुम्हारा 34 फोटॉन्स जो है वो बचा हुआ है। अब ये 34 फोटॉन्स फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूवमेंट पे है। ओके, सो फिगर नंबर 3, जस्ट टू ड्रा फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 में इसको जल्दी ड्रा करिए, रैंडम डायरेक्शन पे, जस्ट सो दैट फोटॉन्स। जिसका होते जाएगा बताते जाना जल्दी भाई। हो गया सर। हो गया, डन सर। गुड, यस सर हो गया। हो गया, अरिहंत हो गया, यस, दिव्या हो गया सर, डन सर। यस सर हो गया। ओके, सो फिगर नंबर 2 इज कंप्लीट। मैंने कहा कि अब हमारे पास y और z एक्सिस के फोटॉन बाहर निकल गए, तो ये जो रैंडमनेस हम दिखा रहे हैं इसको खत्म करके अपने को वो फोटॉन्स अब ड्रा करने हैं जो कि x एक्सिस में मोशन पे है। सो इन द फिगर नंबर 3 वी हैव फोटॉन्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस ओनली, y और z एक्सिस के फोटॉन बाहर निकल गए। इन द फिगर नंबर 3 जस्ट टू ड्रा फोटॉन्स मूविंग इन द x एक्सिस ओनली, लाइक दैट। फिगर नंबर 3 आपको ये दिखाना है कि फिगर नंबर 3 में फोटॉन्स जो है अब एक्स एक्सिस वाला बाकी रह गया, वाई और जेड एक्सिस वाले फोटॉन्स जो है वो खत्म हो गए। ये खत्म कैसे हो गए? कुछ फोटॉन्स, सम फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल मीडियम एंड मैक्सिमम फोटॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट सिस्टम बिकॉज़ दिस इज अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ग्लास है, बाहर निकल जाएंगे फोटॉन्स। अब ये जो 34 फोटॉन्स जो कि एक्स एक्सिस में मोशन पे है, इसमें भी हम सारी प्रोबेबिलिटी को काउंट करके रखेंगे। कुछ फोटॉन्स मीडियम के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सम फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम। फॉर एग्जांपल 7 फोटॉन्स आपने एब्जॉर्ब करा दिया, मैं नंबर्स के साथ साथ चाह रहा हूं ताकि वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अदरवाइज तुम्हारे बुक्स में सम फोटॉन्स लिखा गया है, लेकिन जस्ट हम नंबर के बारे में थोड़ा सा साथ से चले तो थोड़ा हमारे इमेजिनेशन में थोड़ा ठीक जाता है। सो लेट्स से 7 फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय मीडियम, बच गया कितना आउट ऑफ 34? आउट ऑफ 34 7 जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, 27 एटम जो है इस कंटेनर को क्रॉस करके यहां पहुंचा, इस मिरर के पास, ये मिरर है, इस मिरर में 27 फोटॉन्स पहुंच रहे हैं और साथ ही ये मिरर पार्शियली पॉलिश्ड है। पार्शियली पॉलिश्ड मतलब आधा ट्रांसपेरेंट होगा और आधा जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, 20% पॉलिश्ड है। इसमें से कुछ फोटॉन्स जो है वो बाहर निकल जाएगा। लेट्स से आउट ऑफ 27 7 फोटॉन्स जो है वो बाहर निकल गया, 20 फोटॉन्स जो कि उसके डायरेक्ट नॉर्मली उस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, वो 20 फोटॉन्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। तो जब तक ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है तब तक ये पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन मेंटेन हो जाता है यहाँ तक, कितने टाइम पे। अब ये 20 फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया और ये 20 फोटॉन्स जो है वो 20 एटम को स्टिमुलेट करेगा, एक फोटॉन एक एटम को स्टिमुलेट करेगा।
और हम जानते हैं कि स्टिमुलेशन प्रोसेस से फोटॉन्स जो है वो डबल हो जाते हैं। सो 20 photons now convert into 40 photons moving in the negative x-axis। पॉजिटिव में जा रहा था, 7 फोटॉन एब्जॉर्ब हो गया, 7 फोटॉन्स मिरर से बाहर निकल गया, 20 फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया, और रिफ्लेक्ट होकर के वापस जो 20 फोटॉन्स आ रहा है, दैट 20 फोटॉन्स आर स्टिमुलेटेड 20 एटम्स कन्वर्टिंग इनटू 40 फोटॉन्स, जो कि डबल हो जाता है स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन पे। सो 40 फोटॉन्स आर नाउ मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो द डायग्राम नंबर नेक्स्ट, आपको ये सारे फोटॉन्स थोड़ा सा नंबर बढ़ा करके नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपको दिखाना है। So these are the photons moving in the negative x-axis like this. Okay, so you have 40 photons moving in the negative x-axis. Again, we have to count all probabilities. Medium से होकर के जा रहे हैं मटेरियल से, तो कुछ photons तो absorb हो गई. Some photons will be absorbed by the medium. So out of 40 photons, let's say 10 photons absorb हो गया. 30 photons जो फिर से इस कंटेनर को क्रॉस करके इधर आया. ये 100% polished है. There is no probability of transmission of any photon. ये 100% polished है. तो 30 में से 30 फोटॉन्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब ये 30 फोटॉन फिर से 30 एटम को स्टिमुलेट करेगा, 30 एटम को स्टिमुलेट करेगा, बिकम डबल 60 फोटॉन्स। नाउ इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यू हैव 60 फोटॉन्स मूविंग। उस 60 फोटॉन्स में से फिर से 10 फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गया, 10 फोटॉन्स यहां से बाहर निकल गया, बच गया तब भी 40 फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, और इस रिफ्लेक्शन से फिर से 40 फोटॉन्स 40 एटम को स्टिमुलेट करेगा, बिकम्स 80 में से अगर कोई 15 फोटॉन्स भी अगर एब्जॉर्ब होता है तो तुम्हारे पास 65 फोटॉन्स है। 65 फोटॉन्स विल रिफ्लेक्ट कंप्लीटली बाय दिस मिरर, डबल हो जाएगा 130 फोटॉन्स in every oscillation. Why this is known as a resonator? This is the part of oscillator. Oscillation up to a resonance condition. ये ऑस्किलेशन चलते रहता है, and in every oscillation numbers of photons are increasing. हमने स्टार्ट कितने से किया था? हमने स्टार्ट किया था 34 से। सारे प्रोबेबिलिटी हमने काउंट करके रखा। प्रोबेबिलिटी मीडियम के द्वारा कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होगा, एम्प्टी मीडियम एब्जॉर्ब करता है, कुछ फोटॉन्स यहां से बाहर निकलेगा, ये भी हमने कह दिया कि कुछ फोटॉन्स बाहर निकलेगा, इसको भी हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन हर ऑस्किलेशन में नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। नंबर्स ऑफ फोटॉन्स बढ़ते बढ़ते जो है वो एक रेजोनेंस कंडीशन तक बढ़ता है, और उस कंडीशन को जब फुलफिल करते हैं, जिसको रेजोनेंस कंडीशन कहा जाता है, तो सारे फोटॉन्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तैयार हो जाता है। मींस तुमको ये जो डायग्राम है उसको 2 से 3 डायग्राम और आगे बढ़ाना है। हर ऑस्किलेशन में तुम्हें नंबर्स ऑफ फोटॉन्स जो है बढ़ाते हुए दिखाना है ना। अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया नेगेटिव एक्स एक्सिस में, फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यहाँ पर जितने नंबर्स ऑफ फोटॉन्स दिख रहे हैं वो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाते हुए, फिर उसके बाद एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसको ऑस्किलेट करोगे, ठीक है, वहां पर फिर से थोड़ा नंबर ऑफ फोटॉन्स दिखाओगे, और फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो फोटॉन्स दिखाओगे फाइनल जो डायग्राम होगा उसमें तुम नंबर्स ऑफ फोटॉन्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, और सबके फोटॉन्स को एक इस तरह से शो करना कि उसमें कंस्ट्रक्टिव उसमें इंटरफेरेंस दिखे। मींस जस्ट अ group of photons moving in the same phase, fulfilling that conditions of constructive interference like this. So these are that photons. Proper sequencing पे है ना, बहुत सारे photons को तुमको ये this is the last diagram. ओके, तो एक दो ऑस्किलेशन जल्दी बनाओ, और बना करके लास्ट वाला डायग्राम में मैं जिसको 4 लेयर के क्या 4 या 5 लेयर 6 लेयर जितना करना चाहते कर सकते हो। यस गौरव, तो बीच में कितना बनाना है, कितना डायग्राम? 1-2 डायग्राम और बना लो यार, दोबारा ऑस्किलेशन दिखा दो, नेगेटिव एक्स एक्सिस कर लो, फिर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, और फाइनली तुमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही फाइनल को करना है, क्योंकि लेजर यहां से निकलना है फ्रंट से, है ना।
ठीक है सर, ओके। हो गया? So this resonance condition, one condition that is for standing wave. तुम लोगों ने standing wave पढ़ा होगा मेरी तरफ से कहीं इसमें. If let's say the distance between these two mirrors, this is capital L. Capital L is the distance between two mirrors. This is capital L is the distance between two mirrors, and ये जो gap है इतना दिखा रहा है, उतना gap नहीं होता, just attached होता है, transparent ये है ना? दिखाने के लिए हालांकि मैंने सैंडविच करके दिखा दिया है, but this is just a pad. So the distance between two mirrors, this is capital L. So the condition for that standing wave, अगर एक wave अगर कोई आप डिजाइन करना चाहते हो, so this is 1-2 nodes for the standing wave here and here, and the lambda one can write second wave, one can have the second wave and this center. The complete wave, 2 waves, 3 waves, different waves so one can have, and the condition for that standing wave, that is 2L is equal to M multiplied by lambda. If this condition is fulfilled, condition is 2L, L is the length between the two mirrors. So this 2L is equal to M lambda, where M is the integer. M अगर कोई integer है, so M is equal to 1 for this, M is equal to 2 for this. वो जितने loop बनते हैं, जितने wave बनते हैं, M is corresponding to that. So M is equal to yes. Actually क्या है कि यहाँ पर वो wave हमारे लिए useful हो रहा है क्योंकि बहुत सारे photons हैं. हम ये दिखाना चाहते हैं कि x axis में जो photons हैं, वो photons कौन सा photons हमारे लिए काम का है और जो हमें लेजर के फॉर्म में मिलेगा. तो जो photons ये कंडीशन को फुलफिल करता है, that condition 2L is equal to M lambda. This photons fulfilling this condition where M is equal to 1, 2, 3 and so on.
तो m is equal to 1 मतलब एक सिंगल वेव्स यहाँ पर डिजाइन हो रहा है, m is equal to 2 waves like this, m is equal to 3, so we will have 3 waves। और एंड जो है दोनों साइड पे नोड जिस फोटॉन से बनता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एप्लीकेबल होगा, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब जाकर के हमें हाई इंटेंसिटी का आउटपुट मिलेगा। अगर जो फोटॉन्स इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, हमारे किसी काम का नहीं, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा या फिर मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, सो दोस फोटॉन्स व्हिच आर फुलफिलिंग दिस कंडीशन विल हेल्प यू टू फॉर्म दैट लेजर, और अल्टीमेटली हाई इंटेंसिटी का आउटपुट जो है वो यहां से लेजर के फॉर्म में बाहर निकलता है। Some numericals can be solved by using this। lambda की वैल्यू है l, दोनों के बीच का मिरर दे दिया, lambda कितना होगा कि एक स्टैंडिंग वेव बनाता हो या डायग्राम दे करके, या फ्रीक्वेंसी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी का ये होगा, जस्ट यू कैन पुट दैट lambda को फ्रीक्वेंसी के रूप में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, is equal to c by lambda by using this। so in terms of frequency what you will solve, l is equal to m lambda by 2 and this nu is equal to c by lambda। so lambda को यहाँ से पुट करके इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो यू कैन गेट फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज कांस्टेंट, यू कैन गेट फ्रीक्वेंसी एंड यू कैन गेट lambda, given that lambda is given you can calculate the difference between these two mirrors। so this is the condition for forming standing wave। तो जहां पर भी ऐसे स्टैंडिंग वेव बन रहा है, नोड्स बन रहे हैं, वो हमारे लिए लेजर बनाने में हमारे काम आएगा, अदरवाइज बाकी फोटॉन्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि एफिशिएंसी कैसे कम होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से मिलने वाले फोटॉन्स हैं वो पूरे भी हम यूज नहीं कर पा रहे, वाई और जेड एक्सिस वाला कैसे भी निकल खत्म हो गया, जो हमें लेजर में हेल्प करता है। एक्स एक्सिस में जो जा रहा है वो भी मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद नंबर्स ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही फोटॉन्स हमारे काम का है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये फोटॉन्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कन्वर्ट होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमें हाई इंटेंसिटी का आउटपुट मिलेगा एंड दैट इज नोन एज लेजर, इसको लेजर कहते हैं। सो द कंपोनेंट ऑफ लेजर, अगर कोई पूछा इसको तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक लाइन पे उसको खत्म कर दिया जाता है, द कंपोनेंट ऑफ लेजर, सिलेबस में इतना दिया हुआ है, बट द कंपोनेंट ऑफ लेजर्स में मैकेनिज्म को छोड़ करके जितनी चीजें मैंने बताया है वो सब कंपोनेंट ऑफ लेजर के अंतर्गत आता है। तो एक लेजर सिस्टम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और ये कंप्लीट हो गया, सारे डायग्राम कंप्लीट है, इट इज क्लियर। सो द कंपोनेंट ऑफ लेजर, हम लोग ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे वाई में जा रहे हैं और जेड में भी जा रहे हैं। यस, तो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। लेजर में भाई जितनी इनपुट हम दे रहे हैं उतना इनपुट हमें आउटपुट में थोड़ी मिलेगा, है ना, ये लेजिंग एक्शन में ये। सो द कंपोनेंट ऑफ लेजर, फर्स्ट इज एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर होनी चाहिए। एक्टिव सेंटर पे हमने डिस्कस किया था कि these are the atoms which are taking parts in different transitions, ये एक्टिव सेंटर होनी चाहिए। सेकंड, एक्टिव मीडियम होनी चाहिए जो कि होस्ट का काम करता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। एक्टिव मीडियम भी चाहिए, बेस का क्रिएट कर रहा है ये। एंड थर्ड वन इज pumping technique, so we need pumping technique, में pumping technique भी चाहिए to pump the atoms। ये एनर्जी गिविंग टेक्निक है जिससे हम एटम्स को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे पंप करते हैं। then next fourth one is a resonator, that is fabricator resonator, जिसके अंतर्गत ये सारा चीज, ये सारा फंक्शन हो रहा है। ग्लास कंटेनर जिसके बीच में इन चीजों को इसको भर देंगे, एक्टिव सेंटर एक्टिव मीडियम को भर देंगे और उसमें पंपिंग टेक्निक यूज करेंगे, है ना। अगर गैसियस हुआ तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, सॉलिड स्टेट लेजर हुआ तो हम उसके अंदर फिर वो जेनान या रेडान फ्लैश ट्यूब को उसके चारों तरफ लपेट दिए, ये पंपिंग टेक्निक होगा। तो ये सारे हार्डवेयर हैं। अगर मैकेनिज्म को समझाना है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसके लिए फिर हमें ये इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो 3 लेवल सिस्टम है कि 4 लेवल सिस्टम है। सो दैट फिफ्थ, दैट इज एज अ सॉफ्टवेयर, that pumping level system, either 3 level system or 4 level system, जो कि 2 level system तो किसी काम का नहीं है।
पॉपुलेशन कंडीशन मेंटेन नहीं होता। सो दैट इज 3 लेवल सिस्टम और 4 लेवल सिस्टम। ये जो है वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, अगर एक कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो। ये हार्डवेयर है जो तुमको सिस्टम पे दिखेगा, फिजिकल प्रेजेंस। हाँ, लेकिन जिस चीज से हमको एक्सप्लेन करनी है, उस मैकेनिज्म को समझाना है, वो सॉफ्टवेयर है, जो पंपिंग लेवल या 3 लेवल सिस्टम या 4 लेवल सिस्टम। सो दैट्स व्हाई ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लेजर, कंप्लीट कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। तो अब हम जब कभी भी टाइप्स ऑफ लेजर जब हम डिस्कस करेंगे तो उस टाइप्स ऑफ लेजर में हम इन सारे कंपोनेंट्स को पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उसको इंसेंबल करेंगे और फिर उसके मैकेनिज्म को समझाएंगे, है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग रूबी लेजर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट लेजर रूबी लेजर से हम स्टार्ट करेंगे, तो उस रूबी लेजर में हम इन सारी चीजों को पहले इकट्ठे करेंगे। नाम सुने हो रूबी लेजर? रूबी का नाम सुने हो? रूबी, रूबी जानते हो क्या होता है? रेड कलर का एक स्टोन होता है, तो रूबी लेजर में उसी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो एक रूबी क्रिस्टल को लेकर के हम इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि एपिसेंटर कैसे होगा, एक्टिव मीडियम को कैसे लेंगे। रूबी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उसका डिटेल डिस्कस करेंगे। बट इन द रूबी लेजर फॉर एग्जांपल, so the first solid state laser, that is ruby laser. Obviously नाम से ही लग रहा है कि इसमें रूबी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। So we will use ruby crystal. So first of all we should know, we must know the chemical composition of this ruby. देखो पत्थर कह देने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका केमिकल कंपोजिशन चाहिए। एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें बात करनी होगी मैकेनिज्म के लिए, तो सिर्फ कह देंगे हाँ पत्थर होता है, कहेंगे जमीशोन होता है, नो। As far as the chemical composition is concerned, this is alumina. alumina होता है Al2O3 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिना और क्रोमियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिना अगर कोई पाउडर के फॉर्म में अगर कोई लिया जाए, ये अगर कोई पाउडर के फॉर्म में अगर कोई लेते हैं, ये पाउडर के फॉर्म में वाइट शाइनिंग वाला पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है एकदम शाइनिंग वाला। लेकिन जब एक अगर इसको हम क्रिस्टल के फॉर्म में अगर कोई लेते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में लेते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। सो एल्यूमिना की एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप उसको पाउडर के फॉर्म में ले रहे हो तो वो वाइट शाइनिंग वाला पाउडर होता है, और अगर क्रिस्टल के फॉर्म में लेते हैं ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है ग्लास का। और ये जो क्रोमियम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, निकेल, क्रोमियम, फेरस, इस ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है केमिस्ट्री में, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, दिस गिव्स कलर इफेक्ट। तो वो जो कलर जो दिखता है बिकॉज ऑफ दिस क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहां पर 99.95% एल्यूमिना एंड ओनली 0.05% इसमें क्रोमियम है। थोड़ा सा मिला दिए सिर्फ कलर इफेक्ट देने के लिए। हाँ, ज्यादा मिला दोगे तो ज्यादा कलर ये हो जाएगा। तो दैट इज दिस इज द आइडियल वन, स्टैंडर्ड वन। तो 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड इसमें मिला देते हैं। दूसरे टर्म में ये भी कहा जाता है कि ये तो देखो इसमें उसको पहले 0.05% इसमें से हटा रहे हैं और क्रोमियम को उसमें मिक्स कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट हो रहा है, एडिंग नहीं हो रहा है ना। 100% है उसमें 0.05% नहीं मिला है, उसमें से उतना मटेरियल को हाँ हटा करके रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, है ना। सो इन एल्यूमिना दैट Al3 पॉजिटिव आयंस आर देयर as far as the chemistry is concerned, and in the chromium oxide that Cr3 positive ions are there, chromium oxide। तो इसको डेफिनेशन में कहा जाता है रूबी क्रिस्टल का। The ruby crystal is defined as when 0.05% Al3 positive ions in alumina, alumina में 0.05% Al3 positive ions are replaced by
replaced by chromium ions, three positive ions. यही हो रहा है ना, हमारे पास 99.95% ये है, उसमें एल्यूमिनियम आयंस, इसमें क्रोमियम आयंस है, 0.05% एल्यूमिनियम आयंस को क्रोमियम आयंस से रिप्लेस कर दिए. So when 0.05% Al3 positive ions are replaced by in alumina are replaced by chromium ions, then product is or the output is product is known as ruby crystal. इसको रूबी क्रिस्टल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूबी लेजर समझाने से पहले इसका डेफिनेशन को बताना पड़ेगा कि रूबी क्रिस्टल क्या होता है. ओके, सो व्हाट इज द रूबी क्रिस्टल? रूबी क्रिस्टल इज नथिंग बट जस्ट वन एल्यूमिना जिसमें हमने थोड़ा सा क्रोमियम ऑक्साइड मिक्स करके रखे हैं. कितना? 0.05% क्रोमियम मिक्स करके रखे हैं. ये थोड़ा कुछ पैरामीटर्स है जो तुमको याद रखनी पड़ेगी, है ना. अदरवाइज बाकी चीज तो तुमने समझ लिया है, तो अपने सेंटेंस पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब यहाँ पर इसको इसन से कैटेगराइज करके देखें रूबी के लिए जब हम लेंगे, तो ये जो डिफरेंट ट्रांजिशन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कम मात्रा में जो अवेलेबल है वही मींस दैट इज क्रोमियम आयंस. जो मिक्स किया गया क्रोमियम आयंस ये डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेगा. और जो एल्यूमिना है ये तुम्हारा एक्टिव मीडियम का काम करेगा, जो इस क्रोमियम आयंस को मिक्स किया गया ना, क्रोमियम आयंस को संभाल कर रखा हुआ है. तो जो डेफिनेशन में कहा है कि दैट एल्यूमिना दैट मटेरियल जो होस्ट का काम करता है वो एक्टिव मीडियम होता है, ये एल्यूमिना होस्ट का काम कर रहा है. क्रोमियम आयंस जो कि डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेगा वो एक्टिव से. अब जब हम सॉलिड स्टेट लेजर लेंगे तो ये हम वहाँ पे लिख देंगे. पंपिंग टेक्निक हम कौन सा यूज करने वाले हैं? हम पंपिंग टेक्निक इसमें यूज करेंगे ज़ेनान और रेडान फ्लैश ट्यूब. हम इसमें पंपिंग टेक्निक यूज करेंगे. ठीक है, ज़ेनान रेडान फ्लैश ट्यूब पंपिंग टेक्निक यूज करेंगे. एक फैब्रिकेटेड रेजोनेटर तो होना ही चाहिए, एक फैब्रिकेटेड रेजोनेटर हमारे पास रहेगा. ओके, और इसको समझाने के लिए हमारे पास 3 लेवल सिस्टम है. सॉलिड स्टेट लेजर है, मैंने कहा था कि ये 3 लेवल सिस्टम होगा. हाँ, हम 3 लेवल सिस्टम 3 लेवल मैकेनिज्म के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो हमारे पास सारा चीज होगी, कंपोनेंट हमने इकट्ठे कर लिए. अब उसको इंसेंबल करेंगे, इंसेंबल करके लेजर बनाएंगे और लेजर बना के उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे. ड्रॉबैक तो एकदम रटा रटा है, 2 लाइन का ड्रॉबैक तो तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी. लिमिटेशंस ऑफ दिस लेजर, इसकी इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है. और साथ ही पल्स फॉर्म में बंद, पल्स फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में, पल्स के फॉर्म में हमें लेजर मिलता है. ये दो डिफिशियंसीज तुम लिख ही सकते हो. तो मेरे ख्याल से किसी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नो सर. सो इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर. So I think it's 11:21. चलिए भाई, कोई आध क्वेश्चन हो तो कह डालो. हाँ, टाइप्स ऑफ लेजर समझाऊंगा तो आधा घंटा 15-20 मिनट और लग जाएगा, फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्लास हम पर करेगा. किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर.